Hello kids, welcome back to your EVS class. I hope you are safe and taking care of yourself at home. So, what we have discussed in our previous video? We have discussed about how to keep ourselves safe at home and at school, right? And we have discussed some reasons of accident, है ना? हमने कुछ reasons देखे थे जिससे accident हो सकते हैं घर पे या school पे. So, what were those? Using of sharp tools, burning, getting electric shock, falling down and harmful chemicals. So in our previous video we have discussed burning and what? Using of sharp tools. Let's discuss about falling down. How to keep ourselves safe when we fall down. So what is falling down? गिर जाना, right? और जब हम गिरते हैं तो हमें चोट लगती है, ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी. So let's check out how can we take care of ourselves. Okay? So falling down. First, we should not jump off a moving swing or ride. Swing आप सबको पता होगा ना? Yes. स्कूल में आप यूज़ करते हैं, राइट? सो वी शुड नॉट जंप ऑफ अ मूविंग स्विंग और अ राइड. जब भी हम स्विंग्स में हो या कोई राइड ले रहे हो तो हमें चलते हुए झूले से क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नेवर जंप ऑफ, कूदना नहीं चाहिए. डू नॉट स्टैंड नियर स्विंग्स. ऑल्सो डू नॉट स्टैंड नियर स्विंग्स. अगर कोई स्विंग्स में है तो हमें स्विंग्स के पास नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं तो हमें चोट लग जाएगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. डू नॉट जंप ऑफ from moving swing. Okay? Second, do not play or run up and down on the stairs. Stairs means yes, सीढ़ियाँ. सीढ़ियों में हमें क्या नहीं करना चाहिए? We should not play or run. Okay? अगर हम दौड़ेंगे या फिर वहाँ पे खेलेंगे तो क्या होगा? We may fall down. And सीढ़ियों में गिरना is very dangerous, right? हम खुद को रोक भी नहीं पाते हैं तो हमें क्या होगा? चोट लगेगी एंड देन यू विल बी नॉट सेफ एंड फिर हेल्थ इफेक्ट होगा. ओके? सो डू नॉट प्ले और रन अप और डाउन, अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स. थर्ड, स्पिलिंग ऑफ स्लिपरी लिक्विड्स लाइक सोप वाटर, ऑयल शुड बी वाइप्ड ऑफ द फ्लोर. नाउ स्लिपरी लिक्विड, लिक्विड मीन्स यस, पानी की तरह जो होते हैं, राइट? ऑयल, सोप वाटर क्या होता है? डिटर्जेंट मिला के जो हम वाटर यूज़ करते हैं ना क्लोथ्स वॉश करने के लिए, दैट इज सोप वाटर. ओके? सो स्पिलिंग ऑफ स्लिपरी लिक्विड लाइक सोप वाटर एंड ऑयल शुड बी वाइप्ड ऑफ. कभी अगर गलती से फ्लोर पे ये लिक्विड्स गिर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए उसे? नो, we should wipe it off. हमें तुरंत क्लीन करना चाहिए. Otherwise, if someone will go from that place, they will slip and fall down. And फिर बहुत मेजर इंजरीज भी हो सकती हैं. अगर हमारे घर के ओल्ड पीपल उसके थ्रू ऊपर से निकल गए तो they will slip and have bone crack, है ना? So always wipe off the floor if some liquid is spilled on it. Okay? Fourth, do not walk on wet floor or stairs. Wet means आप सबको पता होगा गीला, right? So हमें walk नहीं करना चाहिए. कैसे फ्लोर पे? wet फ्लोर पे. Also stairs. We should wait for it to dry and then we can move. Okay? Next, never leave toys, shoes and other things on the floor. Someone may trip on them and get hurt. So students, I think आप सब खेलते होगे अपने टॉयज से, राइट? और जब स्कूल से घर जाते होगे तो शूज़ भी उतारते होगे अपने. सो वी शुड कीप ऑल दीज थिंग इन प्रॉपर प्लेस और नॉट? येस. इफ़ हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे फ्लोर पर तो क्या होगा? समवन कैन गेट ट्रिप. किसी का उस पर पैर पड़ेगा और वो गिर सकते हैं, right? So never leave your toys, shoes or any items on floor. Okay? Take care of it. Place them in a proper place. Okay? So these were the points for how to keep ourselves safe from falling down.
So I think these are clear to you. Now let's move to next topic, electric shock. Yes, do you know what is electric shock? Current, right. So हमें electric shock या current कब लग सकता है? When we are using electrical items, right? Electric appliances. And what are some electric appliances? TV, refrigerator, electric board, switches, etc. So when we are using electrical appliances, we should properly use it. We should take care of ourselves, okay? Because if we are not using electric appliances carefully, we may get electric shock. हमें current लग सकता है, okay? So let's check out how can we keep ourselves safe from electric shocks. Okay, so first point is never touch any electric switch or wire with wet hands or standing barefoot on a wet floor. Now we will read it carefully. Never touch any electric switch or wire with wet hands. Wet hands means गीले हाथों से हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच या वायर टच नहीं करना चाहिए. आपको पता है क्यों? बिकॉज पानी से करंट और ज़्यादा तेज बढ़ता है, ओके? तो हमें करंट लग सकता है. सो नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच और वायर विथ वेट हैंड और स्टैंडिंग बेयर फुट ऑन वेट फ्लोर. नाउ व्हाट इज बेयर फुट? फुट तो आप सबको पता है. नाउ बेयर मीन्स खाली पैर, ओके? हम पैरों में क्या पहनते हैं? व्हाट डू वी वियर ऑन फुट? शूज, स्लीपर्स, राइट? तो हमें स्लीपर्स पहन के ही वेट फ्लोर में अगर हम हैं, अगर फ्लोर गीली है तो हमें हमेशा स्विच ऑन करना है. तो वी शुड वियर सम स्लीपर एंड देन स्विच ऑन, ओके? खाली पैर से हमें कभी भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए अगर फ्लोर गीली है, ओके? ये मेजर्स आपको कब लेने हैं? स्पेशली व्हेन देयर इज रेनी सीजन, है ना? कभी कभी रेनी सीजन में बारिश होती है और हमारे कुछ घर की जगह लाइक हम बोल सकते हैं कहीं पे पानी पड़ा है और हमें स्विच ऑन करना है तो क्या होगा? करंट लग जाएगा. सो वी शुड वियर स्लीपर एंड दैट टू किस टाइप के स्लीपर? रबर स्लीपर, ओके? सो दिस इज क्लियर. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड एंड वियर स्लीपर्स व्हेन यू आर ऑन वेट फ्लोर. नेक्स्ट, always use ISI marked electrical appliances. Now you might be wondering ISI mark क्या होता है, right? See the picture here. This is mark. इसको आपको अच्छे से देखना है. ये mark किस में होते हैं? You know, those electrical appliances that are safe for us. Okay? हर product की quality होती है ना? So the electrical appliances जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, that are safe for us, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस कम होते हैं, that product have these marks. So जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदें तो उसमें ये मार्क आपको ज़रूर देखना है, ओके? सो यू विल बी सेफ. अगर ये मार्क नहीं है, that means that electrical appliance is not safe. ओके, उससे हमें कभी भी करंट लग सकता है या फिर वो जल्दी खराब हो सकता है. नेक्स्ट, सो दीज 2 points आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट, चिल्ड्रन मस्ट कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. एज ऑलवेज हमें बच्चों से ये सारी चीज़ें दूर रखनी चाहिए, है ना? क्यों? बिकॉज दे कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ दे प्ले विथ इट. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक immediately switch off the main supply and help the victim. अगर आपके घर पे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और आपको दिख रहा है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ओके? सो आपको क्या करना चाहिए? मेन सप्लाई का स्विच ऑफ करना चाहिए. नाउ वेयर इज मेन सप्लाई? मेन सप्लाई आपके घर का जो मीटर होता है ना, जहाँ से आपको पता चलता है कि आज कितनी यूनिट जली है, पापा जानते होंगे. तो आस्क योर फादर दैट वेयर इज़ द मेन सप्लाई ऑफ योर होम एंड स्विच ऑफ इट, ओके? हमें डायरेक्ट उस पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ओके? सो दिस इज क्लियर. नाउ, नेवर यूज वाटर टू पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट, ओके? नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? Have you ever seen spark
इन इलेक्ट्रिक बोर्ड या फिर जब दो वायर जॉइन हो जाती है किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, तो कभी आपने स्पार्क देखा है? स्पेशली आयरन में होता है. ओके, सो व्हेन टू वायर्स जॉइन देयर शॉर्ट सर्किट हैपन, है ना, ब्लास्ट टाइप का होता है, तो उससे आग भी लग जाती है कभी कभी. सो अगर इन केस शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, सो उसको हमें बुझाने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड नेवर यूज़ वाटर. हमें पानी का यूज़ नहीं करना है. एज वी ऑल नो दैट पानी से करंट फैलता है. ओके, सो यूज़ सैंड इन सच केस. ओके, पानी की जगह हमें सैंड यूज़ करना है जब आग किससे लगी हो? बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट. So is it clear? So read all these points given in your book, page number 16, electric shock, and discuss with your parents. Also falling down given in page number 15. So now let's talk about harmful chemicals. Now you might be wondering कि chemicals तो हमारे घर पे नहीं होते हैं. होते हैं. Let me tell you what are some harmful chemicals that you use at home. Have you ever used hit spray to kill mosquitoes? Yes. All out liquid, that is also chemical. Detergent powders, okay, or kuch paints item that are having chemical. Okay, so pesticides, detergent, certain sprays, paint, etc. are some chemicals that we use at home. Okay, घर पे ये सारे chemical होते हैं. Now, if it is अगर ये बच्चों के पास हो, okay, बच्चे आसपास हों इसके, तो क्या करेंगे छोटे बच्चे? लिक्विड समझ के इसको swallow कर सकते हैं ना, पी सकते हैं कुछ और समझ के. तो क्या होगा? You know, they will get poisoning. ओके, जहरीले होते हैं ये केमिकल्स. तो हमें हार्मफुल केमिकल्स को कहाँ रखना चाहिए? प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए, राइट? ऑल्सो, डू यू हैव सम मेडिसिन्स एट होम? येस, ऑल हैव. बट वी शुड ऑल्सो कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, है ना, बच्चों से दूर रखना चाहिए. वाई? बिकॉज कोई भी मेडिसिन हम नहीं ले सकते. वी शुड ऑलवेज टेक मेडिसिन विथ which doctor is prescribing. Okay, so do not take any medicine of your own. Take medical help whenever required. And in case accidentally कोई बच्चा अगर swallow कर ले harmful chemical, so rush to doctor. Okay, so these are some safety tips that you can follow at school or at home. Read your book. In our next video we will discuss about first aid. Till then, like, subscribe and share our channel. Bye bye.